Good morning, students. I am Major Chopra, the director of the Coaching Institute, The Cavalier. We've been into this business of coaching people for NDA and CDS CPF for the last 20 years. So your NDA exam is just around the corner. It's going to be on the 4th of September. And we thought that we'll share our experience with you as to how at this stage you can work on yourself and make sure that you do well in your NDA exam. Fortunately, over the last 20 years, our results have been phenomenal, and even during the online coaching, our result touched almost about 50 to 60%. So I'm sure the students, about 450 odd students who've done the recent coaching for this NDA exam, I'm sure they're going to be doing very well, and we want to pass on this information to you also so that you benefit from our experience. For the NDA exam, now that you are just about 20 days away, you need to strategize on how to deal with your exam, because there is not much that you can acquire now. Whatever you required, you got to work on it and then get a strategy going as to how am I going to be dealing with my maths paper, how am I going to be dealing with the GAT in that, what am I going to do with my English paper, what am I going to do with science, what am I going to do with general studies. So that is what you got to do. Make sure that at this stage, you do not land up into any kind of a panic situation. The best would be that if you can take one or two old question papers and try to solve them, it'll give you a lot of ideas to where you stand. Plus, when you take these papers, take it in real time and also try to find out individually, be it maths, be it any other subject, as to subject-wise, which are the questions which you can attempt quickly, because in a competition exam, nobody can ever get 100% marks. It is not possible. It is how much you can maximize, right? So in your maths paper, you get about 1.25 minutes to solve every question. So there is no candidate who can solve all the question in 1.20 minutes. So what you got to work on is which are the topics in which I can solve somewhere in 1.5 minutes, which are the topics which I can go through in about 2 minutes or so, and which are the topics which trouble me, which take a lot of my time. And now strategize as to which way you're going to be dealing with it. Now our faculty will deal with you or tell you as to how to go about doing things subject wise, right? And presently other teachers are going to join very soon. We got Nupur ma'am here, who's been doing biology and chemistry with us, and she's been associated with Cavalier for almost 5 years now. We've got Goldie ma'am here. You'll be surprised that this is the second generation. It is very rare that her mother was teaching here, and now she's been with us for almost 12 to 14 years. We got Nasreen ma'am here. She's been with us for, ma'am, how much? Some 14, 15 years. And similarly, maths faculty and all faculties here in Cavalier have an experience with us for anywhere about 8, 10 years to 14 years. That's the kind of people who are going to be guiding you as to what to do, right? So make sure that now you have some kind of a plan as to how to maximize your marks. I'm repeating again that there is no candidate who can ever get 100% marks in a competition exam. You got to make sure that you maximize from what you do, right? From here on, one by one, every teacher that is there with the Cavalier will explain to you as to how to deal with things in their own perspective, in the subject that they're going to be covering for you. So I will not take too much of your time. Thank you. Good afternoon all of you. Thank you sir. और आज मैं यहाँ पे आपको एनडीए मैथ्स के बारे में बताने के लिए आया हूँ. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वी हैव आवर एनडीए पेपर ऑन September 4th, और अभी जो टाइम हमारे पास में बच गया है दैट इज हार्डली 20 to 25 डेज. और ये वो टाइम होता है जब हमें या बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी दूंगा कि किस तरह से ये जो आखिरी के 20-25 दिन बचे हुए हैं उनमें किस तरह से प्रिपरेशन करके हम लोग अपने रिजल्ट को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं. तो द कैवेलियर इंस्टीट्यूट में एनडीए मैथ्स इंट्रोडक्शन का ये पीपीटी मैंने तैयार किया है, जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं. और ऐसे वीडियोस तुम लोगों ने और भी देखे होंगे, तो उसके बारे में एक रफ आइडिया तुम्हारे पास में ऑलरेडी होगा.
इट इज जस्ट टू टेल यू सम बेसिक फाइनर पॉइंट्स जिसको मैं कवर करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों को जो बेसिक चीजें पता है वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर जो है वो 120 क्वेश्चंस का है, जिसको हमें करना होता है 2 आवर 30 मिनट्स में। और अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 150 मिनट्स में हम लोगों को कुल मिला के करना है 120 क्वेश्चंस। तो 150 मिनट में अगर हम लोग 120 क्वेश्चंस करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना है, तो अप्रोक्सीमेटली जो एक क्वेश्चन का टाइम हमें मिलेगा वो है 1 मिनट 15 सेकेंड्स का, जो कि देखा जाए तो एक +2 से कंपटीशन एग्जाम की तरफ मूव करते हुए बच्चे के लिए बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि बच्चे जो +2 में पढ़ रहे होते हैं उनको हर क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्टिव मेथड सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें ये इस बात पे फोकस करवाया जाता है कि यू शुड राइट ईच एंड एवरी स्टेप व्हाइल सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यहां आने के बाद सीधी सी बात है कि ये सारे स्टेप्स वाली बात जो होती है वो बिल्कुल ही हटानी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट या 1.25 मिनट में सॉल्व करना है तो यू हैव टू राइट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। और ऐसा करते समय बच्चा कंफ्यूज होता है, और बिना प्रिपरेशन के अगर बच्चा कोचिंग लेने मतलब पेपर देने जा रहा है विदाउट टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तब वो जाता है वीडियोस देखने के लिए। वीडियोस में जब वो टीचर को देखता है तो टीचर जो होता है वो बिल्कुल ही सिस्टम के साथ एडजस्टेड होता है। सपोज कोई टीचर पढ़ा रहा है, 10-15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको ईच एंड एवरी स्टेप पता होते हैं कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कौन से स्टेप को स्किप करना है, कौन सा फॉर्मूला कहां पुट करना है। बट अगर मैं एक बच्चे के नजरिए से चीजों को देख रहा हूं, सपोज आई एम टॉकिंग टू अ 17 और 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जिसने अभी जस्ट +2 का एग्जाम क्लियर किया है, और उसके सामने में इस तरह का कोई पेपर आ जाए, तो उसके लिए उस सिस्टम में आने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, जो कि शायद वीडियो देख के लाना बहुत मुश्किल है, अनलेस और अनटिल उसको एक प्रॉपर कोचिंग मिले। और अभी जब वो एकदम से लास्ट में इन चीजों को देख रहा है तो उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि हार्डली अभी देखा जाए तो 20-25 दिन की कहानी रह गई है। तो सबसे पहले तो वो यही जान पाएगा कि पेपर में आता क्या है, कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं, और हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर को सॉल्व करके देखे। लेकिन सॉल्व करते समय अगर आप बुक से सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रीवियस ईयर की किताब उठा के सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो मेथड्स मिलेंगे दैट विल बी टिपिकल मेथड। वहां पे ज्यादातर कोई शॉर्टकट्स मेंशन नहीं होता है, दैट आर ऑल सॉल्व्ड इन सम फ्यू स्टेप्स डेफिनेटली, बट दे आर नॉट कवरिंग दोस शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपको एक बार कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट तुम्हारे पास में कुछ एक सोर्स हो जहां से तुमको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले। तो यहां पे हम लोगों ने जब ये स्कीम जान ली है कि ये होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में कुछ शॉर्टकट्स के सोर्स होने चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी इन स्लाइड्स को कवर कर लेते हैं, सो दैट आई कैन guide you a few shortcuts based on which you can solve some few questions in your paper very quickly। उससे ज्यादा तो इस वीडियो में बताना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो तुम्हारे मेन बेसिक सेक्शंस होते हैं, सबसे पहला उसमें ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ये 4 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहले बेसिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो कि तुम्हारे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करता है ट्रिग्नोमेट्री। दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस कांसेप्ट्स व्हिच आर देयर इन योर 11th क्लास। 11th क्लास में जो भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, एंड ऑल्सो 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के भी अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को कवर करता हुआ जाएगा। इसके लिए तुम्हें बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। देन कम्स योर हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन ही कैरी करता है। ये बेसिकली वही एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन और तुम्हारे फिगर प्लॉटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। देन कम्स योर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, जो कि एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको बहुत सारे बच्चे कभी पढ़े नहीं हुए होते हैं, बिकॉज ये 11th क्लास में एडेड चैप्टर है। ये चैप्टर अभी ऐड हुआ था कुछ साल पहले, एक मेन चैप्टर नहीं था। तो इससे तुम्हारे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ज्यादातर कवर होता है साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला के थ्रू। देन कम्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 12वीं क्लास के फर्स्ट बुक का 2nd चैप्टर था। ये चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं, अगर तुमने एनसीईआरटी भी ढंग से अगर बनाई हुई है तो वो क्वेश्चन तुम आराम से पेपर में कर सकते हो। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर सेक्शन से इफ यू विल कैलकुलेट, देन यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस इन टोटल। देन कम्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 2 हिस्सों में बटा है, 2D एंड 3D। अब 3D के अंदर में 2 चैप्टर्स हैं अपने, वेक्टर एंड 3D, जो कि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये 12वीं क्लास का है। 11th क्लास में हमें 3D के बारे में बताया तो क्या था, बट दैट वाज जस्ट
इंट्रोडक्शन पार्ट। 2D के अंदर में पूरा का पूरा 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ लाइन एंड कोनिक सेक्शन, जिसमें कोनिक सेक्शन के अंदर में यू हैव गॉट सम 4 टॉपिक्स टू हैंडल एंड दे आर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये सारे सेक्शंस के बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है, तो जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगले स्लाइड में 2D स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन से लेके बना होता है। स्ट्रेट लाइन से 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैं अगेन आई विल से कि स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट 10th क्लास के भी होते हैं। तो आउट ऑफ 11th एंड 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि स्ट्रेट लाइन को कवर करता है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10th क्लास के कंसेप्ट से होंगे। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारे कंसेप्ट्स तुम्हारे 10th क्लास के हैं, तो उससे डेफिनेटली तुमको क्वेश्चन मिलेगा। एंड बाकी रेस्ट ओवर थिंग्स रिलेटेड टू स्लोप ऑफ लाइन, कोलिनियरिटी, कोप्लानरिटी, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो सारे के सारे बेस करते हैं 11th क्लास के, जो कि तुम्हें 6 to 7 क्वेश्चन से 3 अगर वहां से हटा दे तो 4 क्वेश्चन कम से कम 11th क्लास के होंगे। कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा का पूरा 11th क्लास का। अब इसके अंदर में 4 टॉपिक्स जो कि मैंने बताया था, सर्कल उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अकेले 2 से 3 क्वेश्चन खींचेगा। बाकी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पैराबोला से 2-3, एलिप्स से 2-3, हाइपरबोला से 2-3, ये पूरा मिला के 2 से 3 क्वेश्चन देगा। बाकी सर्कल तुम्हें अकेले 2 से 3 क्वेश्चन देगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर 2D पार्ट। उसके बाद आएंगे 3D में। तो 3D जैसा कि मैंने बताया वेक्टर और 3D से बना होता है। अब ये जो 3D वाला पार्ट है जिसके अंदर लाइन, प्लेन और स्फीयर है, तो इस लाइन के अंदर में एक और सेगमेंट बना लेते हैं DC एंड DR का। तो पेपर में अगर 7 to 8 क्वेश्चन यहां से हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस पार्टिकुलर एरिया से निकलते हैं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो लाइन और प्लेन के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जहां पे लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन करके वहां से उसके पॉइंट को निकालना या उसका रेशियो को निकालना, वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेक्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो कि 7 to 8 क्वेश्चंस देगा, और ये पूरा का पूरा 12वीं का टॉपिक है। इसमें तुमको मेनली पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर तुम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है तो डेफिनेटली आउट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होंगे। नेक्स्ट कम्स कैलकुलस। अब कैलकुलस एक तरह से देखा जाए तो पूरा 12वीं वाला पार्ट। इसको हम डिवाइड तो करते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल में, और कुछ हद तक डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ सेक्शन 11th क्लास में होता है, बट दैट मेनली डील्स विथ लिमिट्स क्वेश्चन and a few formula of differentiation is being introduced in your 11th class। वो सिर्फ फॉर्मूला, वो पूरे नहीं, थोड़े से फॉर्मूला ही होते हैं। बाकी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है वो 12वीं क्लास का टॉपिक। और अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में सबसे पहले आता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन देता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे लिमिट्स के और 2 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे कंटिन्यूटी के। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में ये डिफरेंशिएशन है जो कि 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करता है, जो कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे बेस होता है। जैसे हो गया तुम्हारा चेन रूल के क्वेश्चन होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं। तो हर टाइप से एक एक क्वेश्चन वो डेफिनेटली देता है। देन कम्स एओडी, जो कि एक बड़ा सेगमेंट है, और ये पूरा का पूरा 12वीं वाला पार्ट है। इसमें हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं डेरिवेटिव्स का, जिसमें खासकर क्वेश्चन जो आते हैं वो तुम्हारे फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को लेके आते हैं। प्लस इसके अंदर टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट होता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर में, दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। कोई भी पेपर आप इंडिया का उठा लो तो इसके ऊपर में डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली डीलिंग विद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो उसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि बिल्कुल ही नई चीज होती है उन बच्चों के लिए जो 12वीं में होते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 तरह के इंटीग्रेशन के साथ डील करते हैं। एक जो मैंने बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक इंटीग्रेशन होता है जिसमें इनके ऊपर वैल्यूज अटैच होती हैं, से A to B, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। पेपर में इन दोनों इंटीग्रेशन को लेके 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इंडेफिनाइट का हो, बाकी 2 या 3 डेफिनाइट का हो। इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व्स, ये टॉपिक जो है ये लेंथी क्वेश्चंस को मीन करता है, तो इसके कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। अगर वो शॉर्टकट्स तुम्हें पता है तो यू कैन डेफिनेटली डू 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कम्स फ्रॉम दिस,
बिकॉज ये एप्लीकेशन पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालते हैं, एंड दैट नीड्स सम पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन कैरी करता है, ये तुम्हारा एक तरह से पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की रिवीजन कराता है, जिसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन का एरिया होता है, सबसे पहला ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने वाले क्वेश्चन। डेफिनेटली पेपर में एक क्वेश्चन तुमको ऑर्डर और डिग्री का मिलेगा, जो कि विदाउट इंटीग्रेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। देन एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये भी तुम्हें पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देगा, जो कि अगेन डिपेंड करता है तुम्हारे डिफरेंशिएशन स्किल्स के ऊपर में। और एक सेक्शन होता है, वो होता है तुम्हारा सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे तुम्हें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन। तो पेपर में तुम ये बांट सकते हो, एक क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से। इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि 12वीं में तुमने सीखा होगा, मेनली वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक तरह से देखा जाए, काउंट करें तो 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलस सेगमेंट से आता है। उसके बाद आधा पेपर हो गया, 60 क्वेश्चंस का लगभग मैंने काउंट कर लिया था। अब स्टार्ट होता है अलजेब्रा, जिसमें मैक्सिमम चैप्टर जो होते हैं वो 11th क्लास के होते हैं। सबसे पहले सबसे इजी चैप्टर दैट इज बाइनरी नंबर, बेसिक कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन लेता है। देन कम्स लोगारिथम्स। लोगारिथम्स वैसे तो 1 से 2 क्वेश्चन का एक टॉपिक है, बट इसका एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर्स में देखा जाता है। देन कम्स क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन इससे आते हैं। इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, खासकर उन बच्चों को जिनको कैलकुलस पार्ट से कोई खास लगाव नहीं, क्योंकि बेसिकली देखा क्या गया है कि कैलकुलस में जैसे जैसे इंटीग्रेशन की तरफ बच्चा मूव करता है, उसको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। और खासकर जब तुम्हारे पास में कम दिन रह गए हैं, तो तुम्हारा अलजेब्रा वाला जो पार्ट है, जिसमें से यू कैन से हाफ ऑफ द पेपर मतलब करीब करीब 50 से 55 क्वेश्चन जो होते हैं, वो सिर्फ अलजेब्रा से आते हैं। अब जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं, या जो मान लो 12th ढंग से किए नहीं है, उसके लिए ये पार्टिकुलर सेगमेंट जो है, ये वो लाइफ सेवियर सेगमेंट है, जिसको करके बच्चा आराम से एनडीए पेपर क्लियर करने के बारे में सोच सकता है। तो इसमें बाइनरी नंबर, लोगारिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन टॉपिक्स को कभी छोड़ने के बारे में सोचना नहीं। और उसी सेगमेंट में एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर में तुम्हें एपी, जीपी, एचपी इन सब के साथ डील करना पड़ता है। तो अगेन आई कैन से कि ये 4 चैप्टर्स डेफिनेटली पेपर में करके जाना है। और इसमें क्वेश्चन करते समय तुम्हें काफी शॉर्टकट्स भी जानने को मिलेंगे। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया। आप देखो, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो इन दोनों सेगमेंट से मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में एरिया वास्ट है, लेकिन अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी ढंग से पढ़ाई कर लें तो 15 क्वेश्चन जो मिलते हैं, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मीन, मीडियन, मॉड के ही क्वेश्चन काफी सारे होते हैं। और प्रोबेबिलिटी की एक बात है कि वो 9, 10, 11, 12 चारों क्लास की प्रोबेबिलिटी को कवर करता है। तो 9, 10 की प्रोबेबिलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं पेपर। देन कम सेट थ्योरी, जो कि एक इजी चैप्टर में काउंट होता है, और इसके अंदर से खासकर वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए अगर तुमने 11th क्लास ढंग से किया है तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक डेटा के साथ 4 क्वेश्चन लेके आएगा। तो वेन डायग्राम सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है, बाकी तो चैप्टर में थ्योरी पड़ी हुई है। उसके बाद आता है रिलेशन फंक्शन, जो कि तुम्हारे +2 का पहला चैप्टर था और 11th क्लास का दूसरा चैप्टर था। यहां पे तुम्हें यह पता होना चाहिए कि डोमेन रेंज क्या होता है, एक रिलेशन के लिए, एक फंक्शन के लिए। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए किसी पॉइंट पे उसके क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा ही एनडीए के पेपर में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसके बारे में 12वीं में बताया गया था कि 4 टाइप के रिलेशन होते हैं। वो तुम्हें एक रिलेशन देके पूछ सकता है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, नेमली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। ये सारे रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो एक ही होता है। नाउ कम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें डिजिट प्रॉब्लम और बेसिक फॉर्मूला को लेके, जो एनपीआर और एनसीआर के रिलेशन को लेके फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो डेफिनेटली एक आएंगे। एक क्वेश्चन हो गया एनपीआर और एनसीआर के रिलेशन को लेके, और एक हो गया डिजिट प्रॉब्लम। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी कॉम्बिनेशन के अंदर में 12-13 शॉर्टकट्स होते हैं, अगर वो तुम्हें पता है तो उससे भी डेफिनेटली तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का चैप्टर है जो कि एक्सपेंशन सीरीज के ऊपर में डील करता है, जहां पे तुम्हें जनरल टर्म निकालना आना चाहिए, मिडिल टर्म निकालना आना चाहिए, और बाकी इस चैप्टर के अंदर में भी शॉर्टकट्स होते हैं जिनके बारे में अगर पता है तो वो 2 से 3 क्वेश्चन तुम आराम से निकाल सकते हो। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सिंपल चैप्टर होता है जिससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी वो पूछता है। इसमें बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो इन सब के बारे में अगर नॉलेज है तो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दो 7 to 8 क्वेश्चंस। तो ये जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि तुम्हारा पेपर जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से तुम लोग को अप्रोच करना है पेपर के अंदर। तो ये स्कीमेटिक को जरूर फॉलो करना एंड डू सम कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग टू अप्रोच द एग्जाम, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। नाउ आई विल हैंड ओवर इट टू आवर नेक्स्ट टीचर, he or she will guide you about the next subject. Thank you. A very good morning to all of you students, and I know you all will be preparing for your exam, and it would be a very crucial day for you today. So today, since we've already had certain discussions and I've taken over from the maths sir, so let us discuss about English. As you all know, English appears in the paper of GAT, and what are the rules, what are the formulations and this. So there's a small introduction that I want to give you. Now, if you all know that English is the most scoring subject in the GAT paper, there are 50 questions which are asked, and out of that you can easily score higher than 40 questions correctly if you know the tips and tricks to get it across. Now, since all of you are almost on the verge of completing your syllabus, and many of you would have taken coaching and you would have known how to go about it, I would like to tell you certain more tips and tricks so that you are better prepared and you can move across in a certain manner. Now, before we move on further, I would like to emphasize here that this is the most scoring subject that we are talking about. Now, out of all the subjects that you have in the GAT, whether it is your science or whether it is your GS or any other subject that we are talking, if you know what are the questions asked, how many questions are asked, which are the questions which are often repeated in the paper, which are the ones which are definitely going to come across, you would definitely be able to score a much higher score, and there is nothing stopping you from becoming a defense officer. Now, before I begin into that, I would like to tell you that in the further classes that we would be going, and you would be seeing the lectures, you would be knowing what are the important questions which would be coming and which are the tips and tricks, so that you know you will be able to solve an error within 3 or 4 seconds. Now, so let's go further and see what is the type. Now, if you all know, there are 50 questions, and if we talk about, there are 10 questions of spotting errors which are asked. Now, those 10 questions of spotting errors which are asked could be any in general. It is not necessary that it is about grammar. It could be about vocabulary. It could be about words. It could be anything for that matter. Now, the next 10 questions, if I talk about, are fill in the blanks. Now, those 10 questions, like I said earlier, most of them would be vocabulary based, but some of them could also be grammar based, whether it is grammar related to your modals, subject verb agreement, prepositions, etc. The next part that we are talking about is comprehension, which you all have been doing it from school time itself. And comprehension, where we have a passage and there are certain questions given to you and you have to find out the right answer. Again, in the comprehension, although vocabulary based questions are not there, but there might be 1 or 2 questions which are related to your vocabulary. The next thing that we are talking about is close comprehension, which is sometimes asked in the paper and sometimes which is not asked in the paper. Now, close comprehension, unlike comprehension, is the most scoring part of the English paper. It is the simplest to score, which we will be discussing later in our later videos. Then we come to our vocabulary, where you have 5 synonyms which are asked in the paper, and once we are talking about synonym, we are given either in the form of the word in isolation or maybe in the form of sentences.
Then we come to our antonyms, which again are 5 in number, and those have to be again discussed in detail as to how to move across and how to hit and eliminate. Next we come to our idioms and phrases, which again are 5 in number. So we have around 15 questions of vocabulary which need to be discussed in further. So once we are talking about all these questions, we need to know whether we are talking about prepositions, whether verbs, subjects, etc. So we need to know what is the pattern, how to attempt the paper, what are the areas out of all these papers here, that what is the first part that I need to attempt, what is the last part, how do I attempt and how do I move forward, and how do I score better and better, so that even if I am weak in any of the other subject, I am able to make it up by scoring the highest in English and my negatives do not outweigh the positives. I am hoping that this video is going to be of some help to you and is going to give you a brief idea. Until then, I would like to wish you all the best and tell you that please put in your best foot forward and do your best, because this is going to be a do or die situation for you till the 4th of September. So do not repent on the 5th of September. And before I hand over to the science teacher, I would like to say thank you all for sitting here and watching this video. Thank you and bye-bye. Hello everyone, I am Nupur Gulati, your science faculty from Cavalier. Today I am here to discuss the question and the criteria of question comes into your exam. So let's get started. अभी हम लोगों ने बायोलॉजी ऑलरेडी बहुत अच्छे से करी, जितने क्वेश्चंस करे। फिलहाल अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई कितने क्वेश्चन, देखो अभी सबसे बड़ा दिक्कत ही होता है हमने पढ़ तो लिया, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस नंबर के आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन किस नंबर, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है बॉटनी का, जिससे हर साल 3 से 5 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, 3 से 4, 4 से 5 इतने क्वेश्चन हमारे रहते हैं। अगर मैं बोलूं बायोलॉजी को कवर कितना करता है, अगर मैं एनडीए की स्कीम को देखूं तो बोलता है 10 से 15 नंबर। इसी तरीके से वो बोलता है 10 से 15 नंबर केमिस्ट्री बट और फिजिक्स 20। पर होता क्या है, साइंस के अंदर 50 क्वेश्चन देना होता है, ये ऊपर नीचे होता है। आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, पर स्कीम में, एनडीए की स्कीम में इट वाज रिटन दैट 10 to 15 क्वेश्चंस आर देयर। तो अकॉर्डिंगली एनडीए स्कीम हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बॉटनी नाम का टॉपिक होता है जिस टॉपिक को हम लोग छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर साल बॉटनी से 3 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 3 से 5 क्वेश्चन का कितना नंबर हुआ, कितना मार्क्स हो गया? अगर मैं बोलती हूँ 4 क्वेश्चन तो कितने मार्क्स हुए? 16 नंबर हो गए। बेटा ये एक भी नंबर होता तो भी हम करते, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैथ्स का पेपर कर लेंगे तो जीएटी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा बच्चे, ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जूलॉजी का। जूलॉजी के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं आपके ब्लड, हार्ट, आपका ब्लड आता है, हार्ट आता है, आपका ब्रेन आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ये सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं हमारे जूलॉजी के पोर्शन में। अगर मैं बोलती हूँ कि आपके जूलॉजी के पोर्शन में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ब्लड से एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन डाइजेशन से आ जाता है, इस तरीके से इसमें आता है। अगर मैं बोलती हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं आपके जूलॉजी से, तो कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। तो हम छोड़ सकते हैं इसको? नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको क्या करना है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है भैया किस तरीके से पूछे जाते हैं। जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं उसी तरीके से हमने तैयारी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल। सेल के अंदर हमारे पास में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी पेपर में नहीं हुआ कि सेल पे कोई क्वेश्चन ना। कभी वो सीधा पूछेंगे, कभी वो घुमा के पूछेंगे, पर आएगा जरूर। जैसे फॉर एग्जांपल वो सीधा पूछ लेंगे सुसाइडल बैग बता दो, तो हमको पता है लाइसोसोम। थोड़ा सा कभी कभी घुमा देते हैं, बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम का स्टोर हाउस बता दो, तो पहले तो यही समझना पड़ता है भैया हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है, और स्टोर हाउस से याद क्या आता है, वैक्यूल। पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, लाइसोसोम। तो इसलिए ध्यान रखना है, कभी घुमा देगा, कभी सीधा पूछेगा, पर इससे क्वेश्चन आएगा जरूर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट इज डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट इज डिजीज। डिजीज भी एक ऐसा होता है, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन बनना ही है। और क्वेश्चन कैसे आता है डिजीज में, 4 बीमारी देकर के पूछेगा, इसमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, इसमें कौन सी बीमारी फंगस से हो रही है। तो आपको सिम्टम्स याद नहीं करने। सर दर्द हो रहा है तो क्या हुआ, टाइफाइड हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, हमें नहीं जानना, हमें नहीं पता, डॉक्टर थोड़ी बन रहा है। हमको क्या पता होना चाहिए ये कि भाई अगर मैं 4 बीमारी पूछ रही हूँ तो इसमें से बैक्टीरिया की कौन सी है,
अगर मुझे फाइलेरियासिस हो रहा है या मुझे एलिफेंटियासिस हो रहा है तो इसमें बैक्टीरिया का नाम है व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी। टाइफाइड हो रहा है तो ऑर्गन कौन सा इन्फेक्ट हो रहा है, दैट इज इंटेस्टाइन आपका। जॉन्डिस है तो लिवर हो रहा है। ये हमें छोटा छोटा पता होना चाहिए। सबसे पहली मेडिसिन किसने बनाई, इंजेक्शन किसने डिस्कवर किया, ये छोटा छोटा सा टॉपिक है इसमें जो हमको इसमें कवर करना होता है। इसमें 4 तरीके की डिजीज आती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करंट डेवलपमेंट आता है। जैसे अभी तो वही हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है कोविड। आपने देखा इस साल का एनडीए का 2022 का अगर अप्रैल का एग्जाम देखा उठा करके तो कोविड पे क्वेश्चन आया था, भैया स्पुतनिक वी किससे बनी है, कहाँ की दवाई है, इंडिया के अंदर जो मेडिसिन खोजी गई वो कौन सी कंपनी ने बनाई है, सीरम एंड बायोटेक। तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आरएनए है इसमें, डीएनए है इसमें, ये बनी तो एमआरएनए से बनी, डीएनए से बनी, ये सारे करंट के क्वेश्चन है। मंकी पॉक्स आया, कहां से स्टार्ट हुआ मंकी पॉक्स आना, वायरस से हो रहा है, किससे हो रहा है, अभी काउ से रिलेटेड बीमारी आ रही है, राजस्थान से स्टार्ट हुई है। राजस्थान से स्टार्ट हुई है, क्यों स्टार्ट हुई है, मिल्क से हुई है, ये पनीर से हो रही है, ये फ्रूट से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट दे रहा है, ये वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट में, जो कि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। करंट में आप लोग ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। जैसे वैक्सीन में कौन कौन सी आई, अगर अभी हम वैक्सीन की बात करें, हमारे यहाँ पे कोविशील्ड कोवैक्सीन आई। डिफरेंस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या दिया, बूस्टर डोज लग रही है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यूएस थी, यूएस की एफिशिएंसी 96.7% है, ऐसे स्पुतनिक वी की ज्यादा है, हमारी कम है, 67 है, 63 है। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर में, तो ये हमको पढ़ना है। ये तो आप अभी न्यूज देख ही रहे होगे, करंट देख ही रहे होगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बस जब देखेंगे हम न्यूज तो इसलिए देखेंगे क्योंकि हमको ये ध्यान भी रखना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए इसके साथ में हम लोग खत्म करते हैं आज के टॉपिक को। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कितना पढ़ना है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे मैं अपने टॉपिक के लिए खत्म करती हूँ और फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे बाद में। कैवलियर एकेडमी, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि एनडीए में आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारी जनरल ज्योग्राफी, एक है हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद है हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं 4 to 5, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछा जाएगा। वहीं अगर हम वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर्स होंगे, और वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 to 4 क्वेश्चंस, और इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 8 to 9। अब बात यह है कि जनरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। जनरल ज्योग्राफी में आप पहला टॉपिक जिस पर फोकस करेंगे वो होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टॉपिक जिसमें आप कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा ओशन करंट्स। यहां से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ओशन करंट्स से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आ जाता है विंड्स एंड प्रेशर से। विंड्स एंड प्रेशर, देखिए विंड्स एंड प्रेशर से जनरली क्वेश्चन आते हैं लोकल विंड से, जो ग्लोबल लोकल विंड्स हैं, जैसे चिनूक, हरमेटन या सिमूम, बोरा, योमा, ये जो ओशन, ये जो लोकल विंड्स हैं, ग्लोबल लोकल विंड्स, यहां से इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, यहां से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक आप यहां पर तैयार कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इस टॉपिक में आपसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर, ओशन करंट्स, विंड्स एंड प्रेशर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आप इन टॉपिक्स पर तो फोकस करें ही, साथ ही साथ 1 से 2 टॉपिक्स थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लें, जैसे अर्थक्वेक
एंड वॉल्केनोज। अगर आप जनरल ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस सही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी ऐसे ही कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस करेंगे तो काफी चांसेस है कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। अब अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, देन आपको कवर करने हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, देन आप कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सीज, और फाइनली आप कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। अगर ये टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप यहां कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस टाइम पर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे इंडियन ज्योग्राफी की, तो यहां कुछ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, पर ये इतने इंपॉर्टेंट है कि लगातार यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूं। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक आपको करना है वो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया से रिलेटेड कुछ 10 to 15 फैक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जहां पर इंडियन बाउंड्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सरफेस बाउंड्री हो या कोस्टल बाउंड्री हो। एक आधा क्वेश्चन तो यहां से पूछ ही लिया जाता है। सेकेंड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स, माउंटेन पासेस और माउंटेन पीक्स जैसे सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहां एक बहुत बड़ा सेक्शन है पेनिनसुलर इंडिया का, जहां पर आप देखते हैं कुछ पासेस है, थाल घाट, भोर घाट या पाल घाट, इस तरह के पासेस हैं। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आपको साउथ इंडिया की देखने को मिलेंगी। थर्ड टॉपिक जो आप पढ़ेंगे और जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो छोटा टॉपिक है और फैक्चुअल है, तो इजीली इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली रिवर्स, मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको यहां पर पढ़नी होंगी। एक चैप्टर है जहां से क्वेश्चन लगातार आए जा रहा है, वो है सॉइल। सॉइल इन इंडिया। तो यहां पर करीबन 7 to 8 टाइप्स की सॉइल्स हैं। उनमें से आप एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके अलावा रेड एंड येलो और लेटराइट सॉइल को कवर कर सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक जो आप कर सकते हैं यहां पर वो है नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। बेसिकली यहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को कवर करना होता है, एवरग्रीन, डेसिडुअस या स्वैम्प फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट या फिर आपका माउंटेनियस फॉरेस्ट। इनको अगर आप कवर करेंगे विद देयर फीचर्स तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम में। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन से आप देखेंगे कि रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स लगभग हर बार आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स पर फोकस करें। तो इस तरह से आपको जनरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स पर हाल फिलहाल में फोकस करना है, ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो अब हमारे पास है हिस्ट्री का सेक्शन, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री है उसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं मेजरली। एक तो हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा हमारे पास है इंडियन हिस्ट्री। देखिए, बहुत ऑब्वियस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री के आते हैं इंडियन हिस्ट्री से। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आ जाएंगे 3 to 4 क्वेश्चंस, मेडिवल हिस्ट्री से आ जाएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस, और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से मिलेंगे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस। तो आप इंडियन हिस्ट्री को तो किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको कवर करना है, यहां पर आपको कवर करना है कुछ बेसिक टॉपिक्स,
जैसे आप यहां पर कवर कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आप यहां कवर कर सकते हैं, आप जैसे कह सकते हैं कि आप बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टॉपिक है वो यहां से कवर कर लें। बुद्धिज्म और जैनिज्म छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर। और जैसे ही आप ये 3 टॉपिक्स कर लेंगे तो एक लास्ट टॉपिक होगा आपके पास गुप्ता एम्पायर का, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, और उसके अलावा हमारे पास हो जाता है हमारा गुप्ता एम्पायर। ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो एंशिएंट आपका सारा खत्म हो जाएगा। मेडिवल में सिर्फ 2 ही बड़े पार्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। एक तो आप देखेंगे मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी आप कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा इल्तुतमिश, उसके अलावा बलबन, रजिया सुल्तान, ये आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप खिलजी डायनेस्टी में, ये जो मैंने 4 नाम बताए ये तो स्लेव डायनेस्टी के थे, खिलजी डायनेस्टी में आप पढ़ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो उसकी मार्केट पॉलिसी है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खिलजी के बाद अगर तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आप यहां पर कवर कर सकते हैं। और सैयद डायनेस्टी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप फाउंडर का नाम याद रखें जो कि खिज्र का है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट में है लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत आप किसी भी हालत में ना छोड़कर जाएं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आप मेडिवल हिस्ट्री में कवर करते हैं वो आप कवर कर सकते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में भी आपको सारे रूलर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक ही जाएं, ये जो 5 to 6 रूलर्स हैं। उसके बाद के रूलर्स बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख हशीर, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत में कुछ रूलर्स हैं और मुगल एम्पायर में कुछ 5 to 6 रूलर्स हैं। इनके कुछ जो एक्ट्स हैं, इनकी पॉलिसीज हैं, वो सारे आपको पढ़ने होंगे। इस तरह से हम यहां पर देखते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं अलग से आपको ये टॉपिक्स बता देता हूं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप कवर कर सकते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहां से 1 to 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आ ही जाते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आप ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, उसके अलावा आप देख सकते हैं डेनिश और हमारे पोर्चुगीज, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं इनकी, इनसे रिलेटेड कुछ ट्रेड सेंटर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो आप सिर्फ ट्रेड सेंटर्स वगैरह पढ़ के चले जाएं इनके, कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, डेनिश, पोर्चुगीज के जो ट्रेड सेंटर्स थे वो कहां कहां पर थे। और उसी के साथ आप पढ़ सकते हैं, उसी के साथ आप पढ़ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने किस तरह से बंगाल को जीता बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर कर सकते हैं। आपका थर्ड टॉपिक आ जाता है यहां पर कार्नेटिक वॉर्स। हालांकि वॉर्स तो ये 3 हैं नंबर्स में, और आपको इनकी स्टोरीज जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन वॉर्स के साथ जो ट्रीटीज हुई हैं उनको याद रखें। ट्रीटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं 1857 का रिवोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवोल्ट होने के क्या क्या रीजंस थे, वो रिवोल्ट कहां कहां स्प्रेड हुआ, उन रिवोल्ट की साइट्स पर हमारे कौन कौन इंडियन लीडर्स थे, उन इंडियन लीडर्स को किन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सप्रेस किया, उनको हराया, और आखिर में हम रिवोल्ट हारे क्यों। और जब रिवोल्ट हारे क्यों तो आपको पता चलेगा कि रिवोल्ट के बाद इंपैक्ट क्या हुआ इंडिया पर। तो ये रिवोल्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। और एक जो लास्ट फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है कि आप
वो है कि आप 1885 से लेकर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर आप सीधे 1950 तक के इवेंट्स को कवर कर लें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। छोटे छोटे इवेंट्स हैं, आप 3 से 4 दिन में इजीली उनको याद कर सकते हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। बस बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आप याद कर लें। तो इस तरह से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कार्नेटिक वॉर्स, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मॉडर्न हिस्ट्री का एक फेज है 1885 से 1950 तक का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है रेनेसा। तो रेनेसा जो है वो आप बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि हर बार यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसी के साथ आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, किस किसने कौन कौन सी डिस्कवरी की, कौन कौन से इन्वेंशंस किए, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के अलावा आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इन तीनों ही रेवोल्यूशन से बड़े ही क्वेश्चंस आते हैं। और एक टॉपिक आप जो कर सकते हैं साथ में वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, या सिंपली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं आप। ये 4 टॉपिक्स अगर आपके हो जाएं तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इनको कवर कर सकते हैं, इनको कवर कर सकते हैं। और इस तरह से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी ओवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आई होप आपको पता चल गया है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Nupur Gulati from Cavalier. Today we are taking section of science chemistry. How many questions of chemistry comes into your exam? So we will discuss it today कि how many questions of a chemistry section comes into your exam. NDA exams comes into 2 sections, 2 parts. First one is of maths containing 200 questions. Second part is GAT, in which science section consists of 50 marks, 50 questions. 50 questions. That means 4 questions for each marks. That means 200 questions from science section. In science section, 20 questions given to physics and 30 questions to chemistry and biology, from which 15 from biology, 15 from chemistry. पर कभी ऐसा होता नहीं, तो हम लोग उस सेक्शन से चलेंगे जो भाई एक्चुअली हो रहा है, दैट इज 18 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के आते हैं। हम फिलहाल उसको डिस्कस करते हैं कि भैया 18 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कौन कौन से सेक्शन से आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के। अब क्या कंप्राइज करता है चैप्टर, जरा वो देख लेते हैं। रदरफोर्ड की थ्योरी, भाई उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिया, गोल्ड फॉल पे काम क्यों किया, किस तरीके से काम करते हैं, चार्ज क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। नेक्स्ट, मोलारिटी एंड मोलालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन का, फाइंड द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर या फाइंड द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर, या मोलारिटी पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल की बात कर रही हूं, बाकी थ्योरी पर भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, गैसियस लॉ, मोल फ्रैक्शन एंड केमिकल बॉन्डिंग। गैसियस लॉ में 3 आ गए, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, डाल्टन्स की थ्योरी आ गई। इसके अंदर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब मैं डाल्टन थ्योरी करूंगी तो मैं उसके अंदर कैसे पता कर पाऊंगी पार्शियल प्रेशर क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, किस तरीके से आपस में शेयरिंग करते हैं, किस तरीके से आपस में रिएक्शन करते हैं, इन सबको इसमें हमको पढ़ना होता है। और इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इस पे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन आया, बोला कि भाई जब पानी के ऊपर खड़े थे वहां पर बबल्स बहुत बड़े बड़े आ रहे थे या बबल्स बहुत छोटे छोटे आ रहे थे, वाइस वर्सा, कौन से लॉ इसमें लग रहा है, अगर आ रहे हैं तो कितना प्रेशर पे वो होगा, 10 के, 20 के, 30 के, 40 पे, ऐसे सो ऑन आपको बताना था। दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट,
मेटलर्जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलर्जी, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम लोग जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। उसके अंदर एक्चुअली पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान रखोगे मेटल और नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड्स। मेटलर्जी मतलब कि अगर मुझे बाहर अर्थ क्रस्ट है, मैं माइनिंग कर रही हूँ, थोरियम निकाल रही हूँ, गोल्ड निकाल रही हूँ, सिल्वर निकाल रही हूँ, कुछ भी निकाल रही हूँ, गोल्ड निकाल रही हूँ, सिल्वर निकाल रही हूँ, या मैं थोरियम निकाल रही हूँ, तो मैं उसको अलग कैसे कर रही हूँ ओर से, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेवरेट इनका एल्यूमिनियम का ओर बता दो, बॉक्साइट, आयरन का ओर बता दो, हेमेटाइट, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फर्टिलाइजर्स एंड ड्रग्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फर्टिलाइजर्स और ड्रग्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खाद डालते हैं हम लोग खेतों के अंदर, यूरिया जिसमें सबसे फेमस है। यूरिया कैसे बनता है? उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है, इस अपने मास के कितना मास पे होता है, बहुत सारे टाइप के, इनमें से कौन सा टाइप इसमें फर्टिलाइजर में नहीं है। दूसरा आता है बायो फर्टिलाइजर्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, कौन से ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं फार्मर को। इसके अलावा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की जब ये काम कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस कौन से प्रोसेसेस से होते हैं? पानी डाल रही हूं मैं पौधों के अंदर, वो पानी का मूवमेंट रूट्स के अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है? आयन का मूवमेंट जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये वाले सारे प्रोसेसेस के अंदर कवर होते हैं। आयुर्वेदिक नेम्स, जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारा एक नाम रखा जाता है, अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा नाम जिसको हम सर्टिफिकेट पे छापते हैं स्कूल के। फिर एक नाम रखा जाता है जो हमारी मम्मी बोलती है, उसको बहुत छोटा सा करके, तो ऐसे आयुर्वेदिक नेम होता है। जो केमिकल नाम होता है दैट इज आयुर्वेदिक नेम, एक होता है कॉमन नाम, पप्पू, चिंटू, ऐसे इस तरीके से इनका नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। अरे फॉर्मेल्डिहाइड है क्या? दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या हुआ? आयुर्वेदिक नेम। तो ये सारी चीजें हमको आती हैं इसके अंदर। और इसका काम क्या रहा है? अगर मैं इसको फॉर्मूलिन बना रही हूं तो कैसे बना रही हूँ, क्या फॉर्मूला है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल एंड एसपीडीएफ ब्लॉक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या होता है भाई? जो एलिमेंट होता है कार्बन, एक कार्बन सबसे छोटा होता है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो हम पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन जिसको हम अलग पढ़ते हैं, कार्बन जिसको हम अलग पढ़ते हैं, रेस्ट एसपीडीएफ पढ़ते हैं। एस ब्लॉक आप लोगों के कोर्स में नहीं है, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ते हैं, जिसमें हम ऑफ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ऑर्बिटल एनर्जी पढ़ते हैं, और किस तरीके का इसका नेचर रहता है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हम कंप्राइज करते हैं दो सेक्शंस में, एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसका छोटा सा पार्ट आता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भैया रेडियो एक्टिव क्या होता है, डिके क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा। 12th में वो हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, मैडम कोविड वाले बच्चे हैं हम, बट हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आता है। हाफ लाइफ, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पीरियड, हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। थोड़ा सा पार्ट जो केमिस्ट्री में है वो मैं आपको कवर कराती हूँ। फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया, किस तरीके की एनर्जी आती है, ज्यादा एनर्जी किसमें आती है, हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में क्या हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन इस पे रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वैसे तो मोलारिटी के साथ ही करते हैं, नॉर्मेलिटी पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बट थ्योरी पार्ट हमें इसमें से करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी वो भी नहीं आएगा, तो इसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। नॉर्मेलिटी नहीं भी पढ़ेंगे, हमें पता है ज्यादा इससे नहीं आना। तो फिलहाल यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। इसके अंदर से इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक आने हैं, तो मतलब हमें ये समझ में आता है भाई केमिस्ट्री भी हम छोड़ के तो नहीं जा सकते, नंबर तो लाने हैं। हमारा बहुत ज्यादा नंबर कवर करता है। अगर मैं बोलती हूँ 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना तो भी 40 नंबर हो गई, एक नंबर का भी आता तो हम नहीं छोड़ते। कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में हम कोई नंबर के साथ रिस्क नहीं लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये हेल्प किया होगा आपको, इससे आप लोग समझ पाएंगे किस टॉपिक में कितना ध्यान देना है, किस लेवल तक पढ़ना है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर इस चीज को खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर दिस। Thanks, ma'am. Good morning to everyone. And during this episode, we have to discuss about the weightage of physics in NDA examination. As we know very well, almost 25 questions comes in the paper, and right now we have to discuss from which part generally question has been asked in the paper. I will discuss each and every part in detailed way. The first portion is the mechanics. Generally 8 to 10 questions comes from the mechanics portion. The next one is optics. 5 to 6 questions comes from this part. And the third one is the electricity and magnetism. Almost 7 to 8 questions comes from electricity and magnetism. The next one is heat and thermodynamics. 2 to 3 questions comes from the heat and thermodynamics. And the next one is modern physics.
Generally, two questions comes from the modern physics, and the last one is waves and sound. 2 to 3 questions comes from also the waves and the sound. These are basically the theory part, and right now we have to discuss from which topic generally questions has been asked in the paper. Okay, first of all, I would like to start from the mechanics. A lot of questions comes in the mind of the students from which portion generally questions has been asked, from which topic we have to focus so that we will get the maximum result. Okay, and right now we have to discuss the portion. The first one is the mechanics. Generally questions, theory and numerical. It contains the both parts. I would like to discuss in which topic we have to focus for the exam point of view. The first topic is the distance and displacement. The first one is distance and displacement. The next one is relation between kinetic energy and linear momentum. Kinetic energy and linear momentum. The third topic is the variation of Z according to height, depth, and the next one is the Kepler's law. Most of the time question has been asked from these topics. And the next one is the Newton's laws of motion. It's very important part, that is the SHM. And during SHM, we have discussed about the time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum, velocity, acceleration, and energy of these are the main part we have to focus on this topic. Most of the time question has been asked from this topic. It's very important part from the mechanics. And the next topic is the optics. It's very important. Optics, generally 5 to 6 question has been asked. And basically it contains the 3 parts. During optics, the first is the ray optics. Second is the defects in eyes. And this is the optical instrument. Almost 4 questions has been asked from the ray optics. Defects in the eyes, 1 questions, and this is the 1 questions. Generally 6 questions, 5 to 6 questions comes from the ray optics. For numerical point of view,
we have to discuss about that very important part, that is the power of lens. Power of lens is very important part. The next one is the lens maker formula. And third one is the lens and mirror formula. From these topics, numericals comes in the paper. And for theory point of view, we have to discuss about the scattering of light. A scattering of light. The next one is dispersion. Dispersion of light. Then defects in the eyes. Defects in eyes. How to remove this problem? And the next one is the optical microscope, optical instrument. During optical instrument, we have discussed about the simple microscope, compound microscope, how to find magnification of the simple microscope and compound microscope. And also one more thing, we have to discuss about the telescope. How many lenses are used in the telescope? Which lenses have the greater aperture? Which lenses have the more focal length? We have discussed about that things. And the next topic is the heat and thermodynamics. Generally 2 to 3 questions comes from the heat and thermodynamics. During thermodynamics, we have to discuss the law of thermodynamics. Law of thermodynamics, basically first law, second law and zeroth law. You must have the complete knowledge about the law of thermodynamics. And the next one is modes of transmission of heat. These are the theory part. Next topic is it's very important, conversion of temperature in different scale. Conversion of temperature in different scale is very, very important topic. Most of the time question has been asked how to convert the temperature from one scale to another scale. You must have the idea about the different scales of the temperature. The next one is the thermal conductivity and their application and their application. And one more thing is the principle of refrigerator. We have discussed about the principle of refrigerator, how to find the coefficient of performance, which gas has been used, how to work the refrigerator. And the next one is the efficiency of heat engine. Only these topics we have to cover in the heat and thermodynamics. Okay. The next one is modern physics. 2 questions come from the modern physics, and during modern physics we have to discuss about the Bohr's model of hydrogen atom. In modern physics, we have to discuss about the Bohr's model of hydrogen atom. It's very important part.
Bose model of hydrogen atom. And during this, we have to discuss about the how to find radius, velocity, energy. Radius, velocity, and energy of electron in nth orbit. And most important part is we have discussed about the Lyman series, Balmer, Parsons. We have discussed about the Lyman, Balmer, Parsons bracket and Pfund. These are the series of the lines. You must have the idea when electron jumps from one orbit to another orbit, which series of the lines observed. This is Lyman, Balmer, Parsons, bracket, Pfund. Most of the time question has been asked from this topic. The next topic is the de Broglie wavelength. And the last one is the alpha, beta, gamma. This is from the radioactivity. Alpha, beta, gamma radiation from radioactivity. What are the nuclear size? We have discussed about these things in case of radioactivity. The next one is last is the waves and sound. Okay. During this topic, 2 questions generally has been asked, and in this case, it's important. This is the EM waves. We have discussed about the properties of radio wave, microwave, X-rays, radio wave. Microwave, X-rays, and its application. Every time one question comes from the properties of X-rays, microwave, radio wave, what are their wavelength, what are their frequency, and its applications. It's very important questions. And the next one is velocity of sound. On what factor velocity of sound depend? The next one is the Newton's formula for velocity of sound. The next topic is you must have the idea about the frequency, pitch, loudness, audible range. That means these are the topic. Most of the time questions comes from this topic. You must have to focus on this topic because generally questions come from this topic, and we have to discuss each and every topic in the detailed way. Questions can be numericals also, it may be theory part also. From both we have to discuss about the each and every topic in the detailed way. Okay, it's all right, and we have to discuss
each and every topic. Good afternoon, students. I hope all of you are doing well and prepared very well for your examination too, because very few days is left for your examination. So, in this last, slot of time, you have to strategize well for examination to fetch maximum number of, to fetch maximum marks. So, how to strategize if you know that which are the topics which needs to be revised again and again, which are the topics wherein we will be getting these number of questions. So, it will be easy for you to strategize and consolidate yourself, because last few days is meant to consolidate yourself. The entire general studies, the entire portion needs to be consolidated. The students who are able to clear the examination is only one who is able to collaborate and consolidate everything at the last moment of the at the last moment of the examination. What you need to do here, you need to identify that from each topic you get these many these many number of questions, and this is how you need to go ahead. So myself, Nasreen, I'll be taking I do take political science and economics, and also a few things I do tell about current affairs. So this is the section that I handle in the academy, and this is the section from where I'll be telling that these number of questions are going to fetch you more marks. So political science, if we talk about that, how many questions do you get? So precisely we are discussing here for NDA. So if we try to identify that what sort of questions do we get. So actually you have to segregate yourself, divide the entire polity questions into two parts. One will be conventional part, wherein you will get questions, and another will be questions from section of current, political current. So political current scenario and conventional, mix of both is the collective of both is the number of questions that you do get in your examination. So if we talk about NDA, how many questions do they get from polity? So around 10 to 12 questions. Sometimes they get 10, sometimes they might get 12 questions, sometimes they might get 9 also, but approximately 10 questions is something that you do get in your polity. Now, out of this 10 question, there is an expectation that around 8 questions you get from conventional section, and 2 questions will be from current section. What actually do you get in your current section? Important amendments, you need to focus on, okay? New laws, bills, acts which have come forward, which has been given to us. So these are the areas, these are the few areas wherein you have to focus and you can fetch marks for yourself. Recent updates, recent political updates needs to be focused. So important amendments, new laws, bills and acts, whatever has been formulated, therein you have to focus. Previous 1 year laws would be fine. So पिछले 1 साल में जितने amendments हुए, जितने new laws has been formulated, you have to focus them up and study them well. Now coming to the conventional portion, what what exactly you're supposed to do. So there are few topics that you have to identify, that these are the topics, from there you do get questions. So if I talk about first question from conventional side, so first question is, first topic will be making of constitution. So these are the conventional topics which from where you will get question. So making of constitution, and second is citizenship. So this two topic, out of these two topic, you do get chances of getting 1 to 2 odd number of questions from this area. Third area, important area will be your fundamental rights.
fundamental rights. So from fundamental rights, again, you'll be able to get probably one question, or max you can get two questions. See, there are in political science there are around 20 to 25 important topics which is there in NDA. So in the entire course, possibly it won't be it won't be possible for UPSC to pick 2-3 number of questions from single topic. So generally what do? They pick topic, they take one question and they move to the next topic. So there is a tendency, there is a possibility that from different topics or from all the topics that I give you, you do get one question out of each topic. So generally there are 20 to 22 topics wherein you have to focus, and each topic will fetch you one question. So that's how it goes. So fundamental right, again 1 to 2 word question. Next is DPSP. So from DPSP again, possible is 1 to 2 question you will get. Then fifth topic which you have to read is fundamental duties. Fundamental duties. Again, this will you will get one question. Okay, so the next topic after fundamental rights. After fundamental rights, you have president. Then you have vice president, because there has been a president and vice president election both this year. So there is a possibility that you do get question. We are expecting good good 2 questions from both of these topics. So please prepare it well. So president, vice president. Next then, the topic that needs to be read is Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Now these bodies, if I'm talking entirely about these bodies, Lok Sabha, Rajya Sabha, they include the post of speaker and chairman too. So you have to read speaker and chairman post along with these topics. So we are expecting again 1 to 2 questions from these topics, Lok Sabha, Rajya Sabha. So possibly there is a possibility that you will get out of these topics, you will get one question. So the next topic is the other central agencies, the other central bodies. Other central bodies are Attorney General, CAG, Election Commission, UPSC. Okay. So these are the bodies wherein you have to study, and you may get one question out of these 4 topics. Next is next area that you have to prepare well, revise well is governor, then you'll be having what? Joint session, then you will have ordinance. Again, out of this 3, 1 to 2 question you may get. Then there's a topic emergency. Out of the emergency again 1 to 2 question. Then you have local area, local bodies, panchayat and municipality. Panchayat and municipality again you may get 1 to 2 questions. So these are the few topics wherein you have to focus, revise yourself well,
and straight away, achieve your ultimate goal of clearing the examination. Last few days strategy, if I'll ask you, I've given you so many topics and I've asked you to, practice MCQ and practice as many questions as you can. So my suggestion to you is from where you will get those MCQ, which will, that authenticity of the MCQ wherein you will practice and straight away go to the examination hall. How can you do that? So again, let me tell you my advice to you to practice the questions of on all the subjects, be it polity, economics, science, or any subject. Take your NCERT MCQ, chapter-wise MCQ in the last 15 days which is left. तो अगले 15 दिन में आपको क्या करना है? आपने सिर्फ you have to open NCERT MCQ from 6th to 10th. One chapter approximately would be having 20 questions, 20 good number of questions. The authentic question that UPSC may pick. UPSC may pick. UPSC tend to pick. UPSC do give questions from NCERT. How important NCERT is for us, we all of us understand. So NCERT will definitely give you the extra edge, take you to the next level. Definitely will be able to fetch you, more marks. So NCERT MCQ is must and must. So last few days of your preparation requires practicing of NCERT MCQ. So don't look for anything else. Don't go anywhere else. Straight away for polity, for science, for economics, and for all the other subjects, practice MCQ. Nobody will be able to stop your selection. Current plus NCERT's MCQ will be collaborated effort of your of your achieving the passing of your examination. So this is what you're supposed to do for regarding political science. Regarding economics, if I talk, economics is a dynamic subject. It's not a very traditional subject of, the study of economics hasn't been started very long ago. Economics as a subject has been evolved only in the year 1776 when Adam Smith has written a book, Causes of Wealth of Nation, and that is why he is known as father of economics. So what are we supposed to read in economics? My advice again, if you want to revise all your traditional terms, because in economics, questions on current based economy MCQ is generally being asked in any of the competitive examination. So you have to read current economy only and only. At least last few days of revision requires only current economy, not the traditional portion. If you really want to go for the traditional portion, please do the NCERT MCQ, and that is all. That is what you have to do. Nothing else you have to go for. So from 9th class to 12th class, all the MCQs, if you are doing it, then you are in a considerably very good position from rest of the students from the market. Trust me, you do in this way, go for the examination, check yourself, do the question papers, and you will see the difference in you if you've completed NCERT MCQs. So you have to do what? For economics, I will say, if we try to segregate economics, कि economics में क्या क्या आ जाता है, तो economics में भी again हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं. एक पार्ट हो गया आपका कन्वेंशनल एंड द अदर पार्ट इज योर करंट. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि बेस्ड ऑन करंट क्वेश्चन यू गेट आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऐसा हुआ है, बीट इट श्रीलंका हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया एंड इंडिया टू, तो सब पर इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा है. तो इकोनॉमिक सिनेरियो में इतना कुछ है करंट में देने के लिए कि शायद उन्हें वो मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ट्रेडिशनल में से भी कुछ पूछ पाए. टैक्स में कभी कम करना पड़ रहा है, कभी ज्यादा करना पड़ रहा है. सेंट्रल बैंक्स को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हुए कभी कभी कोई चेंज करने पड़ रहे हैं.
किसी परसेंटेज में कभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल वी कैन सी, पॉवर्टी, सो ऑल एवरीथिंग दिस सराउंडिंग इज have some relation with the economy. तो हमारे आसपास ही इकोनॉमी, तो क्योंकि हमारे आसपास है वो सब कुछ करंट है, तो ट्रेडिशनल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी में पॉसिबली कम आएंगे, वो जो करंट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर भी अगर हम बात करें कि एनडीए में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अराउंड हम लोग कह सकते हैं कि कभी कभी क्या करती है वो 4 to 5 क्वेश्चन ट्रेडिशनल इकोनॉमी में से दे देती है, another 5 question from current economy, ठीक है। तो अगर ऑल टुगेदर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अराउंड 10 क्वेश्चन आते ही हैं उसमें, ठीक है। अब आप 5 को कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी करंट अफेयर्स में। सो इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस डज एनडीए गेट एक्चुअली, तो अगर 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं तो उसमें से 4 जो है 3 to 4 क्वेश्चन will be from conventional economy, और तकरीबन 5 to 6 questions will be from current economy. ये वेटेज है करंट इकोनॉमी का। तो what are you supposed to read in current economy? तो करंट इकोनॉमी में रैंक्स एंड इंडेक्सेस, एक ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रैंकिंग ऑफ इंडिया इनटू गिवन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हमारी रैंकिंग कितनी है, जैसे पासपोर्ट हमारा कितना सिक्योर है, जैसे हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी है, जैसे हमारा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, तो जैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो ये डिफरेंट रैंकिंग है, उन्हें कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज कर रहा है। तो रैंकिंग्स एंड इंडिसेस डेफिनेटली करंट इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। Another important portion of economy is government schemes. All the government schemes, benefit schemes that being launched, वो सब की सब इसमें आ जाएंगी। कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ गवर्नमेंट विल कम अंडर द करंट इकोनॉमी। तो देख लो ये 2 ही टॉपिक में कितना कुछ, अ बंच ऑफ यू विल गेट बुक्स ऑन दीज 2 टॉपिक्स, ठीक है। ये अपने आप में इतना बड़ा है, तो इन दोनों एरियाज में काम करना है इफ यू टॉकिंग अबाउट दी करंट इकोनॉमी। अगर हम बात करें कन्वेंशनल इकोनॉमी की, तो कन्वेंशनल इकोनॉमी में क्वाइट सिंपल है, वही जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उसके बाद क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद आ गया हमारा फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन आ जाता है एक बारी, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्सेशन के साथ साथ जीएसटी पढ़ लेना है। उसके बाद अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, आजकल बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट पढ़ लेना है। इन्वेस्टमेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चली जाएंगी, एफडीआई तो ये डोमेस्टिक हो गई, ये एफआईआई इज इंटरनेशनल। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्स टैक्सेशन के बारे में, तो ये टर्म्स है, जस्ट इन case if you get questions. So your terms, to identify the terms, these are the few topics wherein you have to focus in last few days, और ये current के आपको topics हैं। So if you और 9th से लेके 12th तक अगर मेरी एडवाइस माने तो उस एमसीक्यू को जरूर कर लें, आपको जरूर एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। तो एनसीईआरटी के एमसीक्यू प्लस करंट अफेयर्स, योर करंट अफेयर्स कोलैबोरेटिंग इट विद कन्वेंशनल करंट, 2 भागों में किसी भी सब्जेक्ट को बांट लेना है। कन्वेंशनल को कहां से पढ़ना है, कन्वेंशनल का तरीका, चाहे वो पॉलिटी है चाहे वो इकोनॉमी है। रिवीजन का द बेस्ट वे टू रिवाइज इज प्लीज पिक एनसीईआरटी के एमसीक्यू को पिक कर लीजिए, उसे करते चले जाइए 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक, बेस्ट वे टू रिवाइज। करंट का यू हैव टू कोलैबोरेट इट, सो दैट्स हाउ यू हैव टू गो फॉर it. If you will be able to fetch yourself like something like 60 to 65% of question after removing the negative, you will be through in the examinations. So that is how you need to perform, and this is what you're supposed to do. अगर आप
ultimate goal is clearing an NDA exam. What is the way to reach up to that goal? Current, whatever your sources has been, we've been providing the materials in our academy. So whatever have been your sources, please collaborate it with the revision of NCERT, MCQ. I'm stressing on it because it is something that will take you to the destination of achieving the getting the good score in your examinations. So that's what you need to do. Last के 15 दिन में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, कहीं और नहीं जाना, सिर्फ ये रास्ता है, अल्टीमेट गोल है, ये पाथ है, मुझे ये करना है तो मैं उधर पहुंच जाऊंगा. तो मेरे को ये क्लियर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू एंड दिस विल टेक मी टू अनदर लेवल. That is what you need to do. I hope you all have understood. I hope you all are going to work on the advices being given to you. I hope you'll do very well in your examination. Thank you so much. Now all the teachers have covered the details with you as to how you're supposed to be attempting these their respective subjects and how should you be going about it. At the end of it, I would reiterate that you must have a plan on how you're going to be executing your entire test number 1 and test number 2. Remember, as Shekhar sir had told you in the maths paper, make sure that you know which are the topics which you can get the solution easily. The ones that trouble you, just keep yourself away from them. Try to reach the last question by leaving out the chapters which trouble you by about 2 hours, so that whatever you know, because once the paper is over, nobody is going to give it back to you. So you should not go home and when you look at it, I left 60 questions and now out of that I knew 30. That would not be a right thing to do. So wherever you are getting stuck, leave that question. Just keep proceeding. You should be there for the last question by about 2 hours, so that anything that you know, you've already got the marks for it. And leave half an hour for whatever other things you want to attempt. That's how you maximize your maths. Similarly, like English ma'am has been repeatedly telling you, that English paper is the one which actually gives you the merit. Remember, a lot of you people go on the net and try to find out what is the cutoff. Now, you may pass your UPSC exam with the cutoff, but by passing UPSC exam, you do not become an officer or you don't reach NDA. You have to come in the last final 400 people so that there you're in the merit. If you cleared everything, you cleared your SSB also, you don't fall in the merit, it is back to square one. You're at 0 level again. So make sure that you don't go for the cutoff which is given on the net. You define your own cutoff. And to my students here in the Cavalier, we say that anything around 60 to 65% average is called the cutoff. That is the average we are looking at. So herein, English will help you tremendously because English has a fixed syllabus. English you've been studying since class 1. The grammar doesn't change every day. It remains constant. There you should be able to get anything about 40 to 45 to 50 questions right. That is very much possible. It is not, and let me be a little, let me share this with you, that the boys and girls who are from metros, who speak in English, are the ones who lose maximum marks because you've learned English by the ear. And learning English by the ear doesn't solve questions. Okay, you got to get down to your basic grammar. Now the next thing is your science. You are all science students. Most of you are science students. You've been studying science for the last 2 years. Herein, we are not really looking at your basics. What we are looking at is how can you apply that knowledge in a short time. Okay, and that is what the teachers generally tell you, how to go and do these things. Most of you would not be very good in bio. Now, bio is all factual based. There are not too much of derivations for it. They don't have to apply too much. So get down to your basics, like, the various organs of the body, the various systems which are there in your body, get down to diseases, get down to vitamins. These are the kind of questions which will come, like Nupur ma'am has already told you. Again, bio is something a lot of PCM students think that they'll not be able to score. You can actually score in bio if you put a little bit of effort. Chemistry and physics should not be a problem with most of you because you've done your class in 11th and 12th, and this is actually a little lesser than the level of the CBSE exam. Now, PCM students are generally scared of the third section, that is the General Studies section. Now, even that, as the teachers have already told you, Nasreen ma'am has already told you in the briefing earlier, that there are some set piece questions which will always come in polity.
you should work on them. There are some set piece questions which will come in geography, you should cover on them. It is only history which is a little tricky, but then history is not everything in it. In a GAT paper, you maximize your English, you maximize your science, you do this thing. History is, I would take it as incidental. If you can work on it, pretty good, but still you'll be able to do something. Get back to your CBSE books which are there, Samanya Vigyan Wala, that is, ma'am, which is that? NCRT books, yeah. So get out your NCRT books, most of the questions will come from there. Now the other thing is how to, on that given day, the day you have the exam, make sure that at least 2-3 days prior to your exam, you have visited the school, because most of the tests are conducted in various government schools and they are all nearby. They are facing each other or they're at the back of each other, and you mess up from one gate to the other gate. You should plan to be there at the center at least 1 hour in advance, because the entry starts about 25-30 minutes before that. You should be very comfortable, get seated, get to know where you're sitting, how you're sitting, and have your breath going normal. So don't get late and see that school in advance. Same way, a lot of you don't eat in the morning. Right? Oh, purani kahavat hai, khali pet na bhajan gopala, exam kaise doge? So you should eat well. Your metabolic rate is very high, but don't eat oily stuff. Eat soft stuff that you can do. Even in your lunch break, don't go and eat it from those jhabawalas and the guys who are, get something from your home, right? And eat light and eat well. That's very important. And by the time the second paper comes, don't lose heart, because maths is a little tough. This paper is not really so tough. So don't lose heart. Make sure that you're ready to face that exam and take it on. And remember, on the very day the exam is held, we will be live on air. We'll be giving you all the answers. All our teachers here, they'll be solving the paper for you. And by the time you get home, you will already be having the videos with you. You'll always be having the answers with you, so that you can celebrate on what you've done on that very given day. God bless you. Have a great time. Look after yourself. And we want you to score really high marks so that you come into the final merit list, and that is the last 400, and not go by, again I'm reiterating, do not go by the cutoff which is given on the net. Make your own cutoff, and for me, for my students, it is anywhere between 60 to 65%. Have a great time, look after yourself, and in case you feel there is any information you want from us, any help that you want from us, we are doing full-length question paper, test papers with our students, and if some of you want to come and do it, we're going to give it free to you. You just come over to the Cavalier and do it. Our phone number is given, I think it is listed here. It is not listed here, but at the end of the video, we'll be putting the phone number. We are having the full-length test for all the NDA students on day after tomorrow. We are having it on the 21st, and we are having it on the 28th also. All of you who want to come and take this test, it is available for free to you. Come to the Cavalier, take this test. After the test, our teachers will be discussing the test with you, and make the best of it. Have a great time. Look after yourself. Thank you.